Let's start the class today. It's a Venn diagram from quantitative technique point of view. Yesterday we did Venn diagram from reasoning perspective. हमने दो टाइप्स किए थे. आज हम करेंगे quantitative point of view से. The Venn diagram class 11th में set theory chapter number 1, just a replica of that to certain extent. This is a universal set, what we call पूरा universe है इसमें, आप ये मान लो. There are two different sets, set A and set B. So they are set A and set B. Set A and set B. Now there are some part of this is common. Now this has been shaded. Now this common part we call A intersection B. This U जो उल्टा लिखा हुआ है, that is intersection. This intersection means A as well as B, A and B, दोनों common, both. Now this A and B, either or B, that is A union B. That means this part, and this part. All these three parts make A union B. We also say it either A or B. Now this part which is outside of A union B, that is A union B complement. Complement means जो पार्ट A और B के अलावा है पूरे यूनिवर्स के अंदर. तो अगर मैं इनके फॉर्मूलाज डिराइव करूं, दिस पार्ट वी हैव A माइनस B विच इज ओनली दिस पार्ट. सिर्फ A है, B है ही नहीं इसके अंदर. एग्जैक्टली वन लाइक वी डिस्कस्ड यस्टरडे. And this part we have B minus A. Only B, there is no A into that. Now let's derive the formulas of this. A minus B first of all. पूरे A में से अगर इंटरसेक्शन को बाहर निकाल दिया जाए तो I get A minus B. That means the formula for this will be A minus A intersection B. The same way for B minus A, I'm going to get B minus A intersection B. पूरे B में से मैंने इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस कर दिया तो I got B minus A intersection B. इंग्लिश में बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में only A and only B. आपके पास जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये only वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. There are certain words only and or at least exactly almost. कुछ और भी वर्ड्स है. They all are very very important. इनका मीनिंग एक एक करके समझना शुरू करेंगे. अभी तक हमने and का मीनिंग समझा, that means common. हमने और का मतलब समझा, दैट इज या तो ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों हो जाए, ए भी हो जाए और बी भी हो जाए, दैट इज ऑल्सो ओके. एंड राइट नाउ वी हैव लर्नड ओनली ए दिस पार्ट, ओनली बी दिस पार्ट. आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर. द फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर ए यूनियन बी. ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होगा दैट इज ए प्लस बी. Now this part got added twice. ये दो बार ऐड हो गया. That means A plus B minus A intersection B. A plus B दो बार ऐड हुआ तो एक बार माइनस कर दिया तो I got this part and this part all only once. So that became A union B. Now this is A union B complement. कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरे यूनिवर्स में से ए यूनियन बी को आउट माइनस. सो द फॉर्मूला फॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी यूनिवर्स माइनस ए यूनियन बी. दे आर द बेसिक फॉर्मूलाज दैट वन शुड नो बिफोर स्टार्टिंग वेन डायग्राम, सेट थ्योरी, सेट्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन क्वांटिटेटिव टेक्निक. प्लीज नोट देम डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट if you guys would like to. Now after
understanding Venn diagram set theory for 2 sets. Now let's talk about 3 sets. Now set A, B and C we have. इनमें again only A, only B, only C. This part complete is A and B. That means A intersection B, B intersection C and A intersection C. Common आ गया. Now this part which I have darked, that is actually A intersection B intersection C, because ये तीनों ही सर्कल्स के अंदर ऑलरेडी है. Now again let's write them down. अगर मुझे इन सबको अलग से लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? Now 3 सेट्स के डायग्राम के अंदर थोड़ा सा ध्यान से करेंगे. Now this part I'm going to explain only once, बाकी आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं. Now only B part क्या होगा? The only B part going to be B minus पूरे B में से A intersection B minus and B intersection CB minus. बट ये वाला पार्ट 2 बार माइनस हो गया, जबकि मुझे तो एक ही बार माइनस करना है, तो एक बार मैं इसको ऐड कर दूंगा. दैट मीन्स प्लस A intersection B intersection C. Now this is the formula I have for only B. Now the next part which we have, I believe now this should be clear. जैसे only B बनाया वैसे ही only C और only A बनाया. एक बार दोबारा से री कर रहा हूं, रिव्यू दे रहा हूं आपको. ओनली बी समझ आ गया था. ओनली सी देख लो कैसे है. पूरे सी में से ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया. ये पार्ट 2 बार माइनस हुआ, एक बार ऐड कर दिया. बैलेंस्ड. ऐसे जब ओनली ए की बात की तो ओनली ए में से ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी इस पार्ट को ऐड कर दिया ताकि बैलेंस हो जाए. नाउ एक और फॉर्मूला हमें चाहिए इसमें. दैट इज ऑफ यूनियन ऑफ ऑल. तो उसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए. ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. फॉर्मूला कैसे बना? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. फुल ए बी एंड सी सबको ऐड कर दिया, बट ये यूनियन नहीं बना बिकॉज ये वाले पार्ट 2-3 बार ऐड हो गए हैं. तो एक बार हमने इसको माइनस किया, एक बार हमने इसको माइनस किया, एक बार हमने इसको माइनस किया. अब ये वाला पार्ट 3 बार ऐड हुआ था, तीनों बार माइनस हो गया, तो हमने इसको एक बार यहां पे ऐड कर दिया, तो मेरा फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया. तो फॉर्मूला डिराइव करना जिसको आ गया, कंसेप्ट जिसको क्लियर हो गया, ही कैन डू और शी कैन डू एनी क्वेश्चन ऑफ Venn diagram from quantitative side also. I hope this is also clear. Now we're going to do some examples on these. Now let's take an example. Question किस तरह आएंगे उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं एक बार. So the first question we have on the Venn diagram quantitative aptitude में 2 सेट्स वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें 2 ही सेट होंगे. The question we have that says out of 500 स्टूडेंट्स को सर्वे किया गया. दैट मींस यूनिवर्स हो गया मेरा 500. नाउ द क्वेश्चन इज 75% ऑफ देम लाइक इंग्लिश. तो एज अ सब्जेक्ट जो इंग्लिश पसंद है वो 75% लोगों को पसंद है. नाउ दिस इज इनटू परसेंटेज, तो अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे. वी विल राइट हियर 75 एंड विल राइट हियर 100%. So we'll make everything into percentage, that means here. And French is being liked by 65% people. English पसंद है 75% लोगों को, French पसंद है 65% लोगों को, और दोनों चीजें पसंद है 48% लोगों को. तो 40% of people like both.
Now the question is how many of them like either English or French. Now if I add 75 once and 65, it comes out to be 140%. Now that is not possible. So what exactly I can understand? The formula I can use here, मुझे निकालना है union, either A or B, either E or F. So what I'll find out, E union F, that is E plus F minus E intersection F, that is 75 plus 65 minus 48, which is 140 minus 48, that is equal to 92% people gonna like either E or F. या तो उनको इंग्लिश पसंद होगा या उनको फ्रेंच पसंद होगा या हो सकता है दोनों पसंद हो. ऐसे कितने लोग हैं? 92% लोग हैं. इसको करने का एक और ढंग भी है. अगर आप बाय चांस एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हो, अगर कंसेप्ट क्लियर है, आपको मालूम है यूनियन इन 3 पार्ट से बनता है. ये 48 है, ये पूरा सर्कल 75 है, दैट मीन जो बाकी 27 है वो यहां पर है. ये पूरा सर्कल 65% लोगों का है. अगर 48 यहां है तो मतलब बाकी 17 यहां पर है. आपको पता है कंसेप्ट में कि इन तीनों पार्ट से ए यूनियन बी बनता है, तो आप फॉर्मूला नहीं याद, भूल गए. 27 प्लस 48 75, 75 प्लस 17 92, यू गेट द सेम आंसर. तो आप, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हो. लेट्स से क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है, ना तो वो इंग्लिश पसंद करते हैं ना ही वो फ्रेंच पसंद करते हैं. दैट मीन्स हाउ मेनी पीपल आर हियर आउटसाइड जिनको कुछ भी पसंद नहीं है. ना कुछ भी पसंद नहीं है, पूरा बॉक्स, पूरा यूनिवर्स 100% है, यूनियन मेरा 92% है. तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज यूनिवर्स माइनस ए यूनियन बी, दैट मीन्स 100 माइनस 92 जो मैंने अभी निकाला, दैट इज इक्वल टू 8%. दैट इज माय आंसर, मैथमेटिकल फॉर्मूला. और अगर कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है पूरा 100% है, ये तीनों 92 हैं, तो बाकी 8% कहां है? ऑफ कोर्स दे आर आउटसाइड, बट इनसाइड द रेक्टेंगुलर बॉक्स. यूनिवर्स के अंदर है बट ई यूनियन एफ से बाहर है, मतलब उनको 8% लोगों को कुछ भी पसंद नहीं है. इज दैट क्लियर? इफ एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. दो सेट्स वाले, एज आई एम सेइंग कि दो सेट वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम आते हैं, मैक्सिमम आते हैं 3 सेट वाले, ए बी और सी. लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ दैट. The next example now we have, that is on the basis of 3 sets. Let's understand that. It says in a survey of 2400 people, एक सर्वे हुआ 2400 people का, तो यूनिवर्स हो गया मेरा 2400. It is found that 31% people, 31%, 31% read newspaper A and 22% people read newspaper B. Then it says and C is being read by 27%. Now 3 न्यूज़पेपर्स हैं, एक A, एक B और एक C. ओवरऑल परसेंटेज गिवन है 31%, 22% एंड 27%. द नेक्स्ट लाइन सेज 8% पीपल रीड बोथ ए एंड बी. तो जो ए और बी है ये पूरा का पूरा आपका दोनों पार्ट्स मिला के ये 8% है. ये अकेला 8 नहीं है, ये ए एंड बी बट नॉट सी है. दिस पार्ट इज एग्जैक्टली 2 जो हमने कल की क्लास में भी किया था. दिस इज ए एंड बी बट नॉट सी. हमने बोला गया एग्जाम में क्वेश्चन आया ए एंड बी 8% है, ओनली ए एंड बी नहीं है. ओनली ए एंड बी होता तो ये पार्ट होता. उन्होंने बोला ए एंड बी, कोई ओनली वर्ड नहीं लगाया, कोई नॉट सी नहीं लिखा, तो ये दोनों पार्ट्स मिला के 8% है. ये कैच है एग्जाम में, इस बात से ध्यान रखना. देन 7% रीड बी एंड सी, ये मिलाकर दोनों के दोनों पार्ट्स 7% है.
they are 7%. And 10% both C and A. And this is 10%. And then they say 2% लोग सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. So 2% is here. Now अगर मैं इसको मैथमेटिकली करूं, the first question is again the same. How many people read any of these newspapers? या either A or B or C. तो मुझे यूनियन निकालना है. तो मैथमेटिकली करता हूं, फिर रीजनिंग से कंसेप्ट से कराऊंगा, कितना छोटा होगा फिर देखना. अभी मैथमेटिकल करो. A इंटरसेक्शन यूनियन B यूनियन C, फॉर्मूला था A that is 31 plus B that is 22 plus C that is 27 minus A intersection B 8, B intersection C 7 minus B C intersection A 10 plus A intersection B intersection C that is 2. मेरा आंसर मेरे सामने. 31A plus B plus C minus A intersection B minus B intersection C minus A intersection C and plus A intersection B intersection C. Now if I add all of them, 31 and 22 53, 53 and 27 80 plus 2 82 minus 25, 8 and 7 15 and 10 25. The total comes out to be 82 minus 25, that is going to be 57. That means 57% लोग कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. either they read A or they read B or they read C न्यूज़पेपर. यहां तक क्लियर है? I believe everybody is clear है. अगर है किसी को डाउट प्लीज रेज योर हैंड. 7%. सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी रीड बोथ न्यूज़पेपर A and B but not C. तो A और B पढ़ते हो बट C ना पढ़ते हो. एक तो मेरा फॉर्मूला है जो मैं लगा सकता हूं, A और B दोनों पढ़ते हैं, C नहीं पढ़ते हैं. मतलब इस 8% में से ये 2% माइनस कर दो, क्योंकि 8% लोग हैं जो A इंटरसेक्शन B दोनों पढ़ रहे हैं. 2% लोग हैं जो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों चीजें पढ़ रहे हैं. तो अगर दो में से इनको माइनस कर दूंगा, दैट मीन दिस 8 विच इज अ combination of these two, this will remain 6. तो मेरा आंसर हो जाएगा 6% ऐसे लोग हैं जो A और B दोनों पढ़ते हैं बट C नहीं पढ़ते हैं. The third question we have, how many of them read at least 2 newspaper. Now मैंने आपको कहा था 3 वर्ड्स और आएंगे, at least, exactly and at most. Now let's understand that. जब मैं कहता हूं at least 2, एटलीस्ट 2 का मतलब है मिनिमम 2, मतलब 2 या फिर 3. व्हेन आई एम सेइंग एट मोस्ट 2, मैक्सिमम 2, दैट मीन्स 0 और 1 और 2. एंड द थर्ड वन एग्जैक्टली 2, आई बिलीव सबको समझ आ जाएगा. वो एग्जैक्टली 2 मतलब ओनली 2 ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है. एटलीस्ट 2 पूछा गया मुझसे इस क्वेश्चन में, मतलब मुझे बताने 2 और 3. अब या तो मैं मैथमेटिक फॉर्मूलाज में चला जाऊं और अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर दूं, या मैं कंसेप्ट के थ्रू चलूं. 2 और 3 का मतलब है ये 6 है, ये 2 है, टोटल ये 7 होना चाहिए, दैट मीन दिस इज 5. टोटल ये 10 है, दैट मीन दिस इज 8. राइट. अब इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 2 कितने हुए? 6 and 2 8, 8 and 8 16, 16 and 5 21, बिकॉज एटलीस्ट 2 में 2 भी आ गया और 3 भी आ गया. सो 6 to 8, 8 and 8 16, 16 and 5 21. तो ये वाला मेरा आंसर आएगा 21%. एटमोस्ट 2, जब उसने आपसे बोला एटलीस्ट 2, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 चाहिए आपको, सॉरी मिनिमम 2 होने चाहिए. तो मिनिमम 2 का मतलब है 2 वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये A और B पढ़ते हैं, C नहीं पढ़ते. ये A और C पढ़ते हैं, B नहीं पढ़ते. ये B और C पढ़ते हैं, A नहीं पढ़ते. मतलब 6 and 8 14 and 5
19% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 2 ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 2% वो हैं जो तीनों पढ़ते हैं। तो इसमें मुझे 2 और 3 दोनों को ऐड करना है, 19 and 2 21%, राइट? क्लियर? तो फॉर द एटमोस्ट 2, अगर एटमोस्ट 2 बोलता है 0 1 और 2, अब करने का एक तरीका तो ये कि मैं 0 भी निकाल लूं। मुझे पता है ओवरऑल जो था, द ओवरऑल आई हैड कैलकुलेटेड दैट वाज 57%। तो 57% अगर यूनियन है तो बाकी 43% बाहर है, पूरा 100% हो गया, राइट? तो अगर मैं बात करूं 0 कितने लोगों को पढ़ते हैं, दैट इज 43%। 1 कितने लोग पढ़ते हैं? नाउ दिस 1 आई कैन कैलकुलेट बड़ी इजीली। कैसे? ये मेरा पूरा सर्कल 31 का है, 6 into 8, 8 and 8 16, मतलब बाकी बचा 15 यहां पर। ये पूरा सर्कल मेरा 22% लोगों से बना हुआ है, तो 6 into 8, 8 and 5 13, 13 and 9 22। ये पूरा सर्कल C वाला 27% है, 8 and 2 10, 10 5 15, 15 and 12 27। तो मेरे जो एग्जैक्टली 1 वाले हैं वो है 15 और 9 24, 24 and 12 36%। 2 वाले मैंने पहले ही निकाले थे 19%, और जो 3 वाले हैं दे आर 2%। अब मुझसे कोई मर्जी क्वेश्चन पूछ लो, आई कैन आंसर इट, अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है तो, राइट? तो अगर मुझे पूछा जाए एटलीस्ट टू 19 to 21, पूछा जाए एटमोस्ट टू 43 and 36, 79, 79 and 90, 98, एग्जैक्टली टू दैट इज ओनली 19%। तो जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आई कैन आंसर इट वेरी इजीली। Is this clear? Is this question also clear to us? If you guys have understood the concept and you have liked the video, आपको लगता है benefit होगा, तो please like, comment and subscribe so I can keep on posting the videos for my live class. Thank you so much.